Hello students, I hope you are all well. We will continue with chapter number 9, lines and angles. Okay, we have completed question number 1 to 5. Now we are going on to question number 6. Let me mark the points. This is point P. Here is A, R, Q, B, C. And let me name this point as D. Okay. Now it is given to us as AB is parallel to RQ, line AB and RQ are parallel, and BC is parallel to PQ, BC line is parallel to PQ line, and angle ABC, this angle is given to you as 60 degree. Okay. Now see, since BC line is parallel to PQ line, and taking AB as transversal, angle ADQ will be equal to angle ABC. Both will be equal to 60 degree. This angle will also become 60 degree. Okay. After this, reason for this is they are pair of corresponding angles. Okay. Now we have to find out the value of angle PQR. Angle PQR, this angle. So taking AB parallel to RQ, we already have AB parallel to RQ, and taking PQ as transversal, which are like this angle we know, and this angle we have to find out. These two lines are parallel, so we have angle ADQ plus angle PQR as supplementary angles. Why? Because they are pair of co-interior angles. So in that manner, we already know the value of angle ADQ, that is 60 degree, plus angle PQR is equals to 180 degree. Now we can simplify it to find out the value of angle PQR as 180 degree minus 60 degree, that will be 120 degree. Okay. Next is question number 7. In question number 7 we have 4 parts. I will do 2 parts for you. The remaining 2 parts I will leave for you. So this is A part. We have to find the value of x. We have line L and line M as parallel lines, and there is a transversal N. Okay. We are given that this angle here is 130 degree. We have to find the value of x. Okay, so I'm going to take this angle as A. Now see, angle A is equals to 130 degree. Why so? Because both are pair of alternate interior. Let me write down full. Both are pair of alternate interior angles between the parallel lines on either side of the transversal. Okay. Next, on line N, on this line N, angle A plus angle X, A plus X should be equal to 180 degree, because they are pair of linear pair angles. Once again, let me remind you, if you don't know the definitions, you will not be able to do this exercise correctly. So value of angle X will be 180 degree minus 130 degree, that is 50 degree. Okay. Next is D part. I have left B and C part for you. In D part we have this line as L, this line as M, and we have 2 transversals. Okay. We have one transversal, let us name it N, and let us name it LMNO. Okay, this is X. We don't know the value of X. This angle here is X by 2, and this angle here is 50 degree. Okay.
So first of all, let me talk about this transversal O. Let me remove this transversal N from here for a time being. ओके, हमने यहाँ से N वाला ट्रांसवर्सल रिमूव कर दिया, तो ये जो कंप्लीट एंगल बना, ये एंगल बना x/2 प्लस 50 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल बना, ये बना x/2 प्लस 50 डिग्री। यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ट्रांसवर्सल है ना, ये बस अपन को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। अब देखो, ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू आ गया। अब हम बात करें, देखें, x का वर्टिकली अपोजिट एंगल भी x होगा, x का वर्टिकली अपोजिट एंगल भी x होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे एंगल आए, ये दो पेयर ऑफ एंगल है, ये एंगल x है, ये एंगल है x/2 प्लस 50 डिग्री। बोथ ऑफ दीज आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एज यू कैन सी इन द न्यू डायग्राम, बोथ ऑफ दीज आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। x विल बी इक्वल टू x/2 प्लस 50 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे सारे x एक तरफ, x माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दिस इज 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, x/2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। x का हाफ करने पे 50 डिग्री आंसर आ रहा है, तो x का एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए? 50 इंटू 2 100 डिग्री। ओके, now let us talk about question number 8. Only 3 questions are remaining. Let us talk about question number 8. In question number 8, let me write down the names. This point is A, here it is B, here it is C and D. यहाँ पे y है, यहाँ पे x है ऊपर, this here is 60 degree and this here is 40 degree. Okay, तो सबसे पहले जब अपन AB और DC लाइन को पैरेलल बताते हैं और BD अपना ट्रांसवर्सल हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और इसी तरह से देखो, जब हम AD और DC को, AD और BC को पैरेलल बताते हैं, AD और BC को पैरेलल बताते हैं और DB आपका ट्रांसवर्सल हो जाता है, तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और अगला वाला क्वेश्चन मैं बस समझाऊंगा, करना आपको खुद ही है। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके वापस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपके पास ये वाली लाइन इधर n है, इधर वाली लाइन p है और पैरेलल लाइन से l और m। n और p नॉन पैरेलल लाइन से, मतलब आगे जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। हमको वंस अगेन x और y का वैल्यू निकालना है, तो दिस इज 65 डिग्री, दिस हियर इज y। ठीक है, तो पहले y के लिए बात करते हैं, x के लिए बाद में बात करेंगे। तो जब हम y के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम ट्रांसवर्सल n लेंगे, पहले इतना ही डायग्राम देखना है। तो इसमें l और m पैरेलल लाइंस है, तो आपके पास को इंटीरियर एंगल्स का सम y और 65 डिग्री क्या हुए? को इंटीरियर एंगल्स हुए, इनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से आप y का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी बात करें अपन x की, तो दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज 55 डिग्री। अब x का वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो भी x ही आएगा, और वापस से हमारे पास फंडा बना को इंटीरियर एंगल्स का, x प्लस 55 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। आपके पास पैरेलल लाइंस के बीच में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं सॉल्व करके बताता हूं। आपके पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और 2 पेयर्स ऑफ ट्रांसवर्सल है। लाइन P और लाइन Q आपस में पैरेलल है, लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल है, एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 110 डिग्री। आपको एंगल x और एंगल y का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले
जब हम x की बात कर रहे हैं, एंगल x की बात कर रहे हैं, तो हम q वाली लाइन को थोड़ी देर भूल जाते हैं। ठीक है, बाद में लेके आएंगे इसको। देखो अब तो फॉर L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, और यहां पे P इज ट्रांसवर्सल, P को हमने ट्रांसवर्सल लिया, क्या होगा आपके पास x का वर्टिकली अपोजिट एंगल x हो जाएगा, 110 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 110 हो जाएगा। x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हुए ये? अल्टरनेट सॉरी को इंटीरियर एंगल्स हुए, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, दीज आर पेयर ऑफ को इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बड़े आराम से हमारे पास आ गई 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ये तो पहली बात हो गई x की। अब हम इस लाइन को भूल जाते हैं, x वाली को, दूसरी वाली की बात करते हैं। यहां पे मेरे पास सॉरी 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 सॉरी, अब हम क्या करते हैं, x वाली लाइन को भूल जाते हैं और ऐसे लाइनों में बात करते हैं। अब मेरे पास P वाली लाइन Q के पैरेलल है और M जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, P वाली लाइन Q के पैरेलल है और M जो है वो ट्रांसवर्सल है। वापस से वही फंडा लगेगा जो पहले लगा था, 110 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 110, y का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल y। तो अब क्या है हमारे पास, P पैरेलल टू Q है और M इज ट्रांसवर्सल। तो क्या हुआ यहाँ पे, y प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो y का वैल्यू वापस से 70 डिग्री। ठीक है, विद दिस योर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अच्छा जी, आप लोग आराम से प्रैक्टिस वगैरह कीजिए। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे।